Yes, Taslim, we have completed the bond of love. This chapter we have already completed. If you have any doubt, then we will once again read this chapter after having this class. Okay. So, dear students, today we are going to read a new chapter which is titled as If I Were You. So, first of all, as you have seen, okay, on your screen that if I were you, then some of the students they were thinking about that it has grammatically stuck because with I we use always was, right, everyone? But if you have remembered in tense, I have taught you some conditional sentence where I had already taught that with I we can use word also, means with subject, with any subject we can use plural verb and that is word. ये आप सभी को मालूम है, कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ाया गया था आप सभी को कि सब्जेक्ट कोई भी हो, डजंट मैटर वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वी कैन गो विथ वर्ड। आई बात समझ में ना? तो जो देखो इसका टाइटल है, सबसे पहले उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, एंड दैट इज इफ आई वर यू। आई बात समझ में ना कि अगर मैं तुम होता। ओके, दिस इज टेलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये हमें बहुत सारा कुछ बता रहा है विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये लास्ट में हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है ना? इफ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल बिफोर, देन डेफिनेटली सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट शो देयर enthusiasm regarding having this chapter। अरे बात समझ में ना? दे विल नॉट शो देयर इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे वो लोग पढ़ने वक्त। ओके, if you have read this chapter from somewhere else, then definitely it will be less interest, but first time if you are reading this chapter, my dear students, definitely it will give you lots of interest while reading this chapter। Okay, this is a very good chapter। good evening everyone, now focus on your screen। okay, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। ओके एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हो, दैट इज अ चैप्टर व्हिच इज अबाउट टू पर्सन। बेसिकली दिस इज अ स्टोरी व्हिच विल हेल्ड बिटवीन टू पीपल, दे आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, ठीक है ना? यहाँ पे क्या होगा कि वे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यही ये चैप्टर है व्हिच वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड। चलिए, जो कि हम लोग जा रहे हैं इसको समझने के लिए। अब देखो, जेरार्ड लिव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज। ओके, देयर इज वन पर्सन हुज नेम इज जेरार्ड हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, गेटिंग एवरीवन? An intruder who is a criminal entered his cottage। okay, first of all, anyone can tell me what is the meaning of intruder? आप में से कोई मुझे बता दे meaning of intruder? anyone guys, you can tell me the meaning of intruder? you can tell me। Anushka, if we have not completed the bond of love chapter, we will complete after this, don't worry about it। okay, after completing this chapter we will complete। Pusar, Anurag is saying Pusar। Actually, I want to know the meaning of intruder from all of you। Waiting for your reply। Anurag has said that, sir, Pusar। विश कर रहे हैं सर घुसपैठ। विश कर रहे हैं घुसपैठ। Waiting for more reply guys, waiting for more replies। thief, also is saying that thief, no। First of all, dear students, we have to understand the meaning of intruder। okay, a person who introduce especially into a building with criminal intent। a person who intrude especially into a building with a criminal intent, that is called intruder। okay, वो person जो एंट्री करता है किसी के घर में क्रिमिनल थिंकिंग को लेके, क्रिमिनल एक्टिविटी को लेके, दैट इज कॉल्ड इंट्रूडर। गेटिंग एवरीवन? सभी कोई को समझ में आया कि नहीं आया इंट्रूडर का मीनिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल मी एवरीवन, यस और नो। कितने लोगों को समझ में आया? यू हैव टू टेल मी गाइस। अदिति, यस सर, वेरी गुड।
Swarna Pandey, yes sir, very good everyone, very good. Okay, so let's start our chapter which we have to read. तो यहाँ पे basically we have understood that there are two characters. यहाँ पे दो characters है which we have to read, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है और समझना है. First is who? That is Gerard. Okay, and second is intruder. इन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और समझना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, ठीक है. Once again, I am just going to repeat before you read paragraph. Okay, everyone. Gerard lives alone in a lonely cottage. Okay, तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि जेरार्ड जो है एक कॉटेज में अकेले रहते हैं वहां पे. An intruder who is a criminal. Intruder समझ में आ गया वो क्या है? तो एक क्रिमिनल है, अपराधी है. Enters his cottage. किसके कॉटेज में जाता है? ठीक है ना. तो जेरार्ड के, आड़ी बात समझ में ना, जेरार्ड के ये, ठीक है ना, कॉटेज में पहुंच जाता है. He intends to murder Gerard and take on his identity. What was the intention of that intruder? The intention of that intruder was that to kill Gerard and take his identity. Okay, यानी उनका इंटेंशन, यानी जो इंट्रूडर था उसका इंटेंशन यही था कि जेरार्ड को वो क्या करे, तो किल कर दे, मार डाले और उसका आइडेंटिटी वो क्या कर ले, ले ले. ओके एवरीवन, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन इट? कहीं पे कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? टेल मी एवरीवन. कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड. अब चलिए थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब देखो यहाँ पे ना हमारे सीन से स्टोरी का स्टार्टिंग होता है. ओके, ये समझना है. यहाँ पे ये सीन दिया हुआ है ना, यहीं से स्टोरी का स्टार्टिंग होगा. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि हम लोगों को समझना है. ठीक है, तो चलिए अब स्टोरी हम लोगों का स्टार्ट होता है. लेट्स बिगिन द स्टोरी. अब देखो यहाँ पे कुछ ना, देयर आर सम वर्ड्स बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी. We have to go through the some words. Okay, it has given on the before you read part में. जैसे कि देखो, the following words and the phrase occurs in the play. ठीक है ना, ये सारा वर्ड्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, it has written here which is the part of that story. इस स्टोरी का वो पार्ट है. मेरी बात को समझिएगा, इस स्टोरी का वो क्या है, पार्ट है. ठीक है ना, इसका डिफरेंट मीनिंग होता है. सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर ना, okay, this will be your homework, as well as I will make you understand each and every word meaning while reading this chapter. इस चैप्टर को पढ़ने के समय में मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग, ठीक है ना, मैं बताऊंगा. और आफ्टर दैट दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क रहेगा which you have to complete. आपको कंप्लीट करना रहेगा. ओके एवरीवन, गेटिंग एवरीवन? सो लेट्स स्टार्ट. अब देखो सीन फर्स्ट में क्या होता है. सीन फर्स्ट, ठीक है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, व्हेन we will be offline also, we will also do practice on this chapter. Okay, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर पे. someone will play the role of Gerard and intruder too. तो ये आप लोगों को ठीक है ना, सेलेक्ट करना है कि who will play the role of intruder and who will play the role of Gerard too. Okay, ठीक है ना, कि कौन जेरार्ड का रोल प्ले करेगा और कौन इंट्रूडर का रोल प्ले करेगा. अब देखो ये सीन फर्स्ट से स्टार्ट होता है. ऐसा समझना है ना कि वी आर जस्ट गोइंग टू वॉच, मतलब हम लोग एक सीन के माध्यम से इसको देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं. गेटिंग एवरीवन? चलिए स्टार्ट करते हैं. सीन फर्स्ट. अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, देयर इज एन एंट्रेंस बैक विथ which may be curtain. Another door to the left must be a practical door. थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. A small cottage interior, यानी कि एक बात हो रही है कॉटेज की इंटीरियर, अंदर की बात हो रही है. अब देखो वहां पे कौन कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, पहले उसकी बात होगी, चर्चा होगी. ठीक है ना. स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, ये समझ में आ रहा है. देयर इज वन कॉटेज एंड इन इट वी आर टॉकिंग अबाउट, उसके अंदर की बात की हम लोग चर्चा कर रहे हैं. देयर इज एन एंट्रेंस बैक विच, देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच में बी कर्टेन. अब देखो ये क्या है ना, ये जो कॉटेज है इसके पीछे से भी एक रास्ता है. ठीक है ना, पीछे से भी क्या है, एक रास्ता है. ठीक है ना. फ्रॉम दैट प्लेस वेरी लेस पीपल कम एंड गो, बहुत ही कम लोग, ना के बराबर. एक होता नहीं है घर में, एक मेन डोर होता है और एक पीछे से भी रास्ता होता है कि नहीं होता है? मैक्सिमम के घर में होता होगा. ठीक है ना, कुछ लोगों के घर में तो जरूर होता होगा, राइट. अब कुछ लोग बताएंगे किसी किसके घर में होता है या है. एनीवन कैन मैसेज? जिसके घर में एक से अधिक वे है आने जाने का, ये समझ में आ रहा है? वेरी गुड. नो सर नहीं है. आशु बोला नहीं है सर. फिलेज में घर में है सर. अच्छा, शुभम बोल रहे हैं कि फिलेज के घर में है सर. वेरी गुड.
बढ़िया बात है, विलेश के घर में है तो ठीक है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। विलेश के घर में है सर, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। आदित्य भी बोल रहे हैं है सर। सर किचन से है, अच्छा अच्छा किचन से है, वेरी गुड, किचन से रास्ता है, चलो बढ़िया है भाई। अब देखो मेरा इंटेंशन क्या था आपको समझाने का, ठीक है ना। आई थिंक यू गॉट इट, आई होप दैट यू गॉट इट। आपने वो समझ गए कि देखो जैसे कि मेन एक होता है वे जाने का, वैसे ही एक दूसरा भी वे होता है जाने का। यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, ओके। तो ये आप लोग सभी कोई समझ गए, क्योंकि बता रहे हैं कि सर मेरे घर पे है, कुछ लोग बता रहे हैं कि गांव में है सर बेसिकली, ओके। तो हम लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो तो यहाँ पे भी सेम वे में यही बताया गया है कि स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, ठीक है ना, देयर इज एन इंट्रांस बैक राइट विच में बी कर्टेन। अब देखो वो क्या है, जो पीछे का रास्ता है वो क्या कर्टेन से वो ढका हुआ है, ठीक है ना, जैसे कि कर्टेन नहीं लगा हुआ रहता है, पर्दा लगा हुआ रहता है, वैसे ही अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर, और एक दूसरा डोर है जो लेफ्ट की तरफ है, एक दूसरा वे है इंटर करने का या बाहर जाने का, दैट इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है ना। वो किधर है, तो लेफ्ट साइड की तरफ है, आड़ी बात समझ में। और वो क्या है, प्रैक्टिकल, यानी कि मेन रास्ता है, मेन वे है आने और जाने का। गेटिंग द फर्नीचर इज सिंपल। अब देखो इन दैट द इनसाइड द कॉटेज देयर इज आल्सो फर्नीचर, कुछ फर्नीचर है, ठीक है ना, कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल। वो क्या है, तो एक छोटा सा टेबल उस कॉटेज में अंदर रखा हुआ है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ, अ चेयर और टू एंड दीवान रेदर अप स्टेज ऑन द राइट। और देखो राइट के साइड की तरफ की बात की जा रही है, दीवान, व्हाट डू यू मीन बाय दीवान, दीवान का मतलब क्या होगा, यू हैव टू टेल मी, मेक मी अंडरस्टैंड गाइस, दीवान का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीवान। बेड, यस आशीष, वेरी गुड, बेड। दीवान का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, बेड होगा, बेड, वेरी गुड। कि देखो बेड वेयर वन पीपल कैन स्लीप, एक इंसान आराम से सो सकता है वहां पे, ठीक है ना। दीवान एक छोटा सा होता है, ठीक है, तो उसकी बात की जा रही है दीवान। तो देखो बताया जा रहा है ना कि इनसाइड द कॉटेज, वहां पे क्या क्या था, तो चेयर्स थे, ठीक है ना, टेबल रखा हुआ था, आ रही बात समझ में, और उसी के साथ और क्या था वहां पे, तो एक दीवान जो बेड होता है वो था राइट साइड के तरफ, ओके एवरीवन। ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन, और टेबल पे क्या था, एक सेलफोन रखा हुआ था, राइट एवरीवन। क्या किसी को इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, बताओ तो मेरे को। पहला जो सीन है ये समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, वंस अगेन आई कैन रिपीट, मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक है, इफ यू से। पहला सीन जो है, ये सीन जो है वो समझ में आया, कॉटेज के अंदर का सीन, जो बताया जा रहा है कि बहुत सारा मतलब कि ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है, लाइक क्या, तो वहां पे दीवान है यानी इट मींस बेड है, ठीक है ना। पहले राइट साइड के बताया जा रहा है आपको कि बैक साइड की तरफ से क्या है, तो रास्ता है अंदर से, ठीक है ना, एंट्री करने का। तो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या समझने में, टेल मी एनीवन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। असू नो प्रॉब्लम सर, एवरीवन हैज टू डू मैसेज, सभी को मैसेज करना है, एवरीवन हैज टू डू मैसेज, बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग एज आई विल टीच हाफ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट आस्किंग टू ऑल ऑफ यू, okay, so you must have to clear your mindset whether if you are getting then you have to say yes sir, if you are not getting then you have to say no sir, okay, no problem, okay, very good, no problem. So this was the first scene which we have talked about it, जिसके बारे में हम लोग बात कर लिए, चर्चा कर ली। I hope there is no any problem. चलिए moving ahead guys, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो when the curtain rises, अब देखो, is standing by the table making a phone call, he is the medium of height and wearing bond rimmed glasses, he is dressed in a lounge suit and a great coat, ओके। अब जैसे ही देखो सीन होता है ना, तो आप देखते होगे कि ड्रामा होता है तो उसके आगे एक पर्दा लगा हुआ रहता है, लगा रहता है ना, और जैसे ही हटता है पीपल स्टार्ट क्लैपिंग एंड वॉच द एक्टिविटीज विच इज गोइंग टू बी हैपन, और जो एक्टिविटी होता है उसको वो क्या करते हैं, देखते हैं। हाँ बोलिए आस्था, बोलो, प्रॉब्लम है क्या आस्था, यस आस्था स्पीक बिकॉज यू हैव रेज्ड योर हैंड। सर गलती से हो गया था। ओके ओके, कोई बात नहीं, चलिए
अब देखो जैसे ही क्या होता है ना, कर्टेन हटता है, उसमें क्या दिखाई दे रहा है, व्हेन द कर्टेन राइजेस जेरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल, एज यू नो दैट देयर वाज अ सेल फोन ऑन द टेबल, ठीक है ना, फोन रखा हुआ था, ठीक है ना, किस पे, टेबल पे। तो जेरार्ड क्या थे, तो उस टेबल के पास खड़े होकर और कहीं पे कॉल, ठीक है ना, मेकिंग अ फोन कॉल, और वो फोन लगा रहे थे, इट मींस या किसी से बात कर रहे होंगे। He is of medium height. Here it has talk about the appearance of Gerard. यहाँ पे किसके appearance की चर्चा हो रही है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो चर्चा हो रही है appearance के, तो जेरार्ड की, अरे बात समझ में ना, जेरार्ड के, ठीक है, अपीयरेंस की चर्चा हो रही है कि जेरार्ड देखने में कैसे है, तो मीडियम हाइट के, ही इज नाइदर टॉल नॉर स्मॉल, अरे बात समझ में ना, उनका जो हाइट था, मीडियम ऑफ हाइट था, दैट वाज मीडियम, ओके, नाइदर टॉल नॉर स्मॉल, अरे बात समझ में ना। वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, अब देखो रिम्ड ग्लास कहने का मतलब क्या होता है, रिम्ड ग्लास होता है ना, जैसे कि स्पेक्टेकल आता है, आप देखना एक पतला टाइप का रहता है, आगे से ऐसे पतला टाइप का रहता है और पीपल पहनते हैं। दिस इज योर वर्क विच यू हैव टू शो, आप यहाँ पे रिम्ड ग्लास जो लिखा हुआ है ना, हॉर्न रिम्ड ग्लास, इसको आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है, और इवन इफ इट इज पॉसिबल देन आप अगर जानते हो दैट इज गुड, जैसे मैंने बताया इट इज अ शॉर्ट काइंड ऑफ स्पेक्टेकल, ये क्या होता है, एक प्रकार का चश्मा होता है जो पतला होता है, ठीक है ना, पतला टाइप का। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है देन यू कैन गो एंड सी द इमेज ऑफ दैट रिम्ड ग्लास, आप इसका, ठीक है ना, क्या देख सकते हो, फिगर देख सकते हो कि किस प्रकार के चश्मे की यहाँ पे बात की गई है। ओके एवरीवन, अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जेरार्ड जो है क्या कर रहे हैं, वो कॉल कर रहे हैं, ठीक है, इनका हाइट क्या है, मीडियम हाइट के है, नाइदर लॉन्ग नॉर शॉर्ट, ना ही ज्यादा लंबे हैं और ना ही ज्यादा वो छोटे हैं। वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, ठीक है, चश्मा पहने हुए, ही इज ड्रेस्ड इन अ लॉन्ज सूट एंड ग्रेट कोट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लॉन्ज सूट करने का मतलब क्या है, टाई लगा है, कोट है, और जो कोट है ना वो लॉन्ग कोट है, अरे बस समझ में ना, यहाँ पे लॉन्ग कोट की बात की गई है। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, अब यहाँ पर वॉइस इज कल्चर्ड करने का मतलब क्या है कि इट सेल्स दैट ही इज एजुकेटेड पर्सन एज ही वाज टॉकिंग वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं हिज वॉइस इज कल्चर्ड, इट सेल्स ही इज एजुकेटेड पर्सन। आ रही बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। हेयर वी हैव टॉक अबाउट द अपीयरेंस ऑफ जेरार्ड, जेरार्ड के अपीयरेंस के बारे में हमने चर्चा किया, जिसमें हमने ये देखा कि वो कहाँ पे, तो टेबल के पास जाकर कहीं पे कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या, तो मीडियम हाइट के हैं, ठीक है, हमने ये भी देखा कि उनका हाइट क्या है, तो मीडियम हाइट के हैं, ठीक है ना, और क्या पहने हुए हैं वो, तो रिम्ड ग्लासेस पहने हुए हैं, ठीक है ना, चश्मा, और जो ड्रेस पहने हुए हैं लाउंज सूट, लाउंज सूट का मतलब क्या होता है बच्चा, फॉर्मल सूट, ठीक है ना, फॉर्मल सूट, टाई, ओके, कोट ड्रेस, टाई जो होता है ना, टाई पहने हुए हैं, कोट है, ड्रेस है, ठीक है, एंड ग्रेट कोट, और जो कोट है वो क्या है, तो वो लंबा है, ठीक है, ग्रेट कोट, हिज वॉइस इज कल्चर्ड, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को समझने में। टेक्स्ट द मैसेज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यहां तक के लाइन को समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या, टेल मी गाइस फास्ट, message me fast guys, I can see your message, so do it fast. No problem sir, very good, no problem Aditya Raj, no problem, okay, no problem, no problem, no problem sir, no problem, very good। आंसू यहाँ पे कल्चर्ड भी सब लोग एडुकेटेड बोल सकते हैं, ठीक है, सिविलाइज्ड पर्सन बोल सकते हैं, ओके आंसू, ओके वेरी गुड। चलिए अब देखो जेरार्ड का यहाँ पे स्टार्टिंग होता है, ठीक है ना, अब देखो वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, वेल, अब जैसे देख रहे हो ना, यहाँ पे वेल के बाद क्या दिया गया है, कोमा यूज किया गया है, यानी वेन एवर यू आर गोइंग टू टॉक ऑन द सेल फोन डायरेक्टली यू विल नॉट ओनली स्पीक, ठीक है ना, जब आप सेलफोन पे बात करने जाते हो तो केवल आप ही क्या बोलते हो, केवल आप ही बोलते हो, क्योंकि आप क्या करते हो उसमें रुक कर जो दूसरे इंसान है जिससे आप बात कर रहे हो उसकी बात को भी सुनते हो ना, सुनते हो कि नहीं, हाँ या ना, बोलो मेरे साथ, अरे आपको बोलना है हाँ या ना, सुनते हो कि नहीं सुनते हो। जब आप किसी से सेलफोन पे बात करते हो तो क्या आप केवल आप ही बोलते हो कि उसकी बातों को भी सुनते हो, सुनते हो ना, हाँ,
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यस सर, वेरी गुड। तो यहाँ पे भी देखो यही बात है, फर्स्ट में जेरार्ड की बात की गई है वेल, और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा वेल, ठीक है ना, यानी वेल बोलने के बाद वो बात को सुन रहे हैं। टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली, और बोलते हैं कि उसको बोलो डायरेक्टली फोन करने के लिए। आई मस्ट नो, यस, फिर देखो यही बात चल रहा है, आई मस्ट नो, हाँ मैं जानता हूँ, ठीक है ना, यस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हियर, ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ कि मैं यहाँ पे रहूंगा। देयर इज नो एनी गारंटी मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, ठीक है ना, मैं आशा करता हूं कि मैं यहाँ पे रहूंगा, बट यू मजंट काउंट ऑन दैट, लेकिन तुम इस पे ना, काउंट ऑन का मतलब क्या होता है, रिलाई, रिलाई मींस विश्वास करना, लेकिन इतना भी विश्वास मत करना कि मैं यहाँ पे रहूंगा ही, ठीक है ना, कि मैं यहाँ पे रहूंगा इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम, हो सकता है 10 मिनट के लिए रहूं, ओके, आ रही बात समझ में, 10 मिनट के लिए रहूं, ठीक है, और गुड बाय, उसके बाद क्या बोलते हैं, गुड बाय। आई ना समझ में, यानी कि वो किसी से सेलफोन में बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हाँ 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 ठीक है, यहाँ पे मैं 10 मिनट के लिए रह सकता हूँ, लेकिन मेरी बात पे विश्वास मत करना कि मैं काफी देर तक यहाँ पे रहूंगा, ऐसा भी नहीं है, और बोलते हैं फोन को रखते हैं। अब देखो, he puts down the phone and goes to the दीवान on the left। अब देखो वो क्या करते हैं, फोन को रखकर, और जो बेड था दैट इज दीवान, उसके लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं। वेयर देयर इज अ ट्रैवलिंग बैग, और वहां पे क्या था, उनका ट्रैवलिंग बैग था, मींस वो कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे थे, राइट एवरीवन, because whenever you put your clothes in the traveling bag it seems that you have to go somewhere else, या आप पैकिंग कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे we have already read पैकिंग चैप्टर, हमने पैकिंग चैप्टर भी पढ़ा है, ठीक है ना, तो ये क्या कर रहे थे, तो ये अपने दीवान, यानी इट मींस जो उनका बेड था उसके लेफ्ट साइड की तरफ जो इनका बैग रखा हुआ था, ट्रैवलिंग बैग, उसमें वो अपने, ठीक है ना, क्लॉथ्स को रख रहे थे, एंड स्टार्ट्स पैकिंग, और वो पैकिंग करना स्टार्ट कर रहे थे। whilst he is thus engaged another man similar in build to Gerard enters from the right silently, revolver in hand, he is flashily dressed in an overcoat and soft hat, okay। अब देखो होता क्या है, उसी बीच अब ये क्या हो गया, ही इज थस इंगेज, अब इंगेज थे, ये बिजी थे, ठीक है ना, आड़ी बात समझना, पैकिंग करने में। अनदर मैन, ठीक है ना, एक दूसरा इंसान, सिमिलर इन बिल्ड टू जेरार्ड, और वो एकदम सिमिलर था इन द अपीयरेंस ऑफ किसके, जेरार्ड के, ठीक है ना, इट मींस फ्रॉम द हाइट वी कैन से दैट, आड़ी बात समझना, वो सिमिलर था, किसके सिमिलर था, तो जेरार्ड के ही सिमिलर था, वो उनके घर में, ठीक है ना, साइलेंटली इंटर कर जाता है, और उसके हाथ में क्या था, रिवॉल्वर था। अब देखो यहां से कहानी हमारा बहुत अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट हो जाएगा, ओके। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड सॉफ्ट हैट, अगर देखा जाए, ठीक है, वो क्या पहना था, द कलरफुल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैशली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैशली, गाइस टेल मी, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to tell me the meaning of flashly, tell me everyone, what is the meaning of flashly, meaning of flashly, very good Aditya, colorful, he is flashly dressed in an overcoat and soft hat, ठीक है ना, अब समझना मेरी बात को, he is flashly dressed in an overcoat and soft hat। अब ये जो था, ठीक है ना, द कलरफुल ड्रेस पहना हुआ था, ओवरकोट यानी इसका जो कोट था वो क्या था, लॉन्ग कोट था, एंड सॉफ्ट हैट, एक हैट पहने हुए, टोपी पहने हुए वो इंसान था। he bumps accidentally against the table and at sound Gerard turns quickly। अब ये क्या होता है ना, ये टकरा जाता है, he bumps accidentally against the table, और टेबल में क्या हो जाता है, इसका पैर टकरा जाता है, ठीक है, और क्या होता है, आवाज क्रिएट होता है। अब जेरार्ड घूम कर देखता है क्या कि आवाज आया कहां से, ठीक है, आवाज आया कहां से। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में। नाउ देयर विल बी ओनली कन्वर्सेशन बिटवीन जेरार्ड एंड इंट्रूडर। अब जो कन्वर्सेशन होगा ये दो लोगों के बीच में होगा, आई बात समझ में ना, ये जो कन्वर्सेशन नाउ इट विल स्टार्ट बिटवीन ओनली टू पीपल एंड दैट इज जेरार्ड एंड इंट्रूडर। कौन कौन, तो जेरार्ड है और कौन है, तो इंट्रूडर है, उनके बीच में ये कन्वर्सेशन होगा व्हिच वी हैव टू रीड गाइस, ओके। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, टेल मी, यहां तक किसी वर्ड के मीनिंग में अगर आपको प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क। यहाँ पे हमने देखा जो इंट्रूडर है उसके अपीयरेंस के बारे में बता दिया गया, बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम, इज देयर एनीवन हु हैज एनी प्रॉब्लम, आयुष नो सर, अदिति नो सर, ओके, टेल मी गाइस, मैसेज करो जिससे मुझे भी मालूम चले। अनुराग वर्मा नो सर, आदित्य राज, अमृत राज, आस्था नो सर, वेरी गुड,
प्रज्ञा प्रियदर्शी नो सर, विश कुमार नो सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी बात है, यू ऑल पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, ओके। अब देखो होता क्या है, अब जिराड क्या बोलते हैं, प्लेजेंटली व्हाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर ईर। अब देखो क्या होता है ना, अब जैसे ही ये देखते हैं जिराड, उस इंसान को जिधर से आवाज आता है उधर वो टर्न्स करते हैं, टर्न्स बैक एंड सी दैट देयर इज वन पर्सन। देन व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ जिराड, रिप्लाई क्या रहता है जिराड का, देखो क्या बोलते हैं जिराड, क्या बोलते हैं प्रेजेंटली, बहुत ही नॉर्मल वे में, ठीक है ना, आगे बात समझ में ना। व्हाई दिस इज अ सरप्राइज, ये सरप्राइज क्यों, ठीक है ना मिस्टर ईर, बिकॉज ही डजेंट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, इंट्रूडर का वो तो नाम जानते नहीं थे, इसीलिए इल बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो इंट्रूडर बोलता है, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर लॉन्ग, पुट दोस पॉज अप। ओके, अब इंट्रूडर क्या बोलता है, आई एम ग्लैड, कि मतलब कि मैं शौक हूं, ठीक है ना, कि तुम मुझे देखकर खुश हो, हमारी बात समझ में ना, कि मैं शौक हूं। अब आप ही के सामने अगर कोई रिवॉल्वर लेके आ जाए, आपकी स्थिति क्या होगी, जस्ट इमेजिन गाइस, क्या होगी। सपोज करो कोई लेके गन ही आ गया आपके सामने, व्हाट विल हैपन विथ यू, यू विल स्टार्ट फियरिंग, आप डरने लगिएगा। अनुराग, फियर सर, यस वेरी गुड, फियर, डर लगने लगेगा, राइट एवरीवन, होगा ना। बट वो जो इंसान बैक, ठीक है ना, रास्ते से, पीछे के रास्ते से आता है रिवॉल्वर के साथ, ठीक है, और जिराड के सामने रिवॉल्वर लिए हुए है, खड़े हैं, और वो बहुत ही नॉर्मल वे में उससे पूछते हैं व्हाट इज सरप्राइज, ठीक है ना, कि ये क्या, आगे बात समझ में। तो इंट्रूडर जो रहता है उसका रिप्लाई रहता है कि अच्छा आप भले ही मेरे को देखकर खुश है, ठीक है ना, बट आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, बट मुझे नहीं लगता है कि काफी देरी तक आप मेरे को देखकर खुश रहिएगा या आप खुश रह पाइएगा, ठीक है ना। और बोलता है पुट दोज पॉज अप, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉज, यू हैव टू टेल मी। आदित्य बोल रहा है कि उसको मारेंगे, अच्छा, यहाँ पे ना पॉज का मतलब है हैंड, कि पुट दोस पॉज अप, यानी कि अपने हाथ क्या करो, खड़े करो, ऊपर करो। अब जिराड क्या करते हैं भाई, जैसे उसने बोला, इसने भी अपने हैंड को क्या कर लिया, रेज कर लिया। किसने किया, किसने किया, जिराड ने कि इंट्रूडर ने, हु हैज डन दिस, जिराड और इंट्रूडर, टेल मी गाइस, किसने किया, जिराड ने किया था कि इंट्रूडर ने किया था। जिराड, जिराड, वेरी गुड, स्वर्णा पांडे, एवरीवन वेरी गुड। चलिए सभी को समझ में आ रहा है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ओके, बहुत मजा आएगा इसको समझने में, इसीलिए पहले मैंने समरी नहीं बताया। देखते हैं कि जिराड बच पाते हैं कि नहीं बच पाते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो क्या होता है, जिराड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स बट, अब देखो जिराड बोलता है ना व्हाट, अच्छा अब इससे पहले चलिए आप लोग मेरे को बताइएगा मेलोड्रामेटिक मींस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलोड्रामेटिक, मीनिंग ऑफ मेलोड्रामेटिक। देखो मेलोड्रामेटिक का मतलब होता है ना एक्सेसिव इमोशन, कोई भी गूगल बाबा का हेल्प नहीं लेगा, ठीक है ना, आई एम हियर टू टेल यू, मैं यहाँ पे हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है ना, ये एकदम सोच लो, जो गूगल बाबा का हेल्प लेगा माता रानी उसे पाप लगाएगी, समझ लेना भाई, ठीक है। तो मेलोड्रामेटिक का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव इमोशन, टू शोइंग एक्सेसिव इमोशन, जैसे कि आप देखते हो नहीं हो सीरियल में क्या होता है, एक ही साउंड को 3 बार 4 बार क्या करता है, रिफ्लेक्स करके दिखाता है कि नहीं, क्या क्या लगातार 3 बार करता है, वैसे ही, ठीक है। तो बोलते हैं दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक नॉट वेरी ओरिजिनल, ठीक है ना, कि मेलोड्रामेटिक लग रहा है, ठीक है ना, ओरिजिनल नहीं लग रहा है, परहैप्स बट हो सकता है, शायद हो सकता है, ट्राइंग टू बी काम एंड try to be calm and Gerard nonchalant is your word I think। अब देखो इंट्रूडर बोलता है ना try to be calm अब देखो इंट्रूडर बोलना चाहता है बट he hasn't sufficient word, उसके पास पर्याप्त वर्ड नहीं रहता है कि वो क्या बोले, वो अपने आप को शो कर रहा है ना कि मुझे हेजिटेशन नहीं हो रहा है, आली बात समझ में ना, कि मैं एकदम हेजिटेशन नहीं हूँ, आराम से हूँ, मैं भी जैसे तुम आराम से हो वैसे ही मैं भी तुम्हारे ऊपर रिवॉल्वर ताने हुए हूँ, मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आड़ी बात समझ में। तो ये बोलते हैं कि जिराड बोलते हैं कि तुम्हारा वर्ड होना चाहिए ना नॉन चैलेंट, क्या होना चाहिए तुम्हारा वर्ड, नॉन चैलेंट होना चाहिए, आड़ी बात समझ में ना,
What is the meaning of non-challenge? First of all, you people have to underline these words. सभी वर्ड को अंडरलाइन करते हुए चलिएगा आप, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं. वी हैव टू डू दैट द सेम थिंग हियर आल्सो. ठीक है ना. नॉन चैलेंज मींस क्या हो गया आपका? बेपरवाह. ठीक है, सही बोले, वेरी गुड. ठीक है. इज योर वर्ड आई थिंक. अब देखो इंट्रूडर बोलता है थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद बताने के लिए. यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट. अब बोला है ना कि बहुत जल्द ना तुम जो स्मार्ट बन रहे हो ये बनना तुम्हारा खत्म हो जाएगा. आई विल मेक यू क्रॉल. ठीक है ना. अब देखो यहाँ पे आई विल मेक यू क्रॉल कहने का मतलब क्या है, इस बात को समझिएगा. ठीक है ना. जैसे कि आप बच्चे को देखते हो ना कि अपने वो पैर पे रेंगते हुए यहाँ से भागते हैं या चले जाते हैं कहीं. ठीक है ना. मैं वैसा तुमको कर दूंगा. कौन बोल रहा है? इंट्रूडर बोल रहा है. ठीक है. किससे? तो जेरार्ड से. आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी. मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहता हूँ. मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहता हूँ. ठीक है. अब देखो आगे क्या होता है. जेरार्ड एनीथिंग यू लाइक. अब बोलता है जेरार्ड बोलता है एनीथिंग, जो भी पूछो पूछो मैं बताऊंगा. आई नो ऑल द आंसर. मैं सारा आंसर जानता हूँ, जो पूछोगे ना मैं सारा आंसर बताऊंगा. बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माय पोजीशन. यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट. अब देखो ये बोल रहा है कि उस समय से तुम मेरा हाथ खड़ा कर रहा है, रेज योर हैंड. ठीक है ना. तो आई हैव रेज्ड माय हैंड. रेज हैंड किया ना. अब इस पोजीशन में तुम मुझसे अगर क्वेश्चन पूछोगे देन हाउ इट इज पॉसिबल दैट आई विल गिव ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर आंसर इन एलोबोरेट वे. अरे बात समझ ना. इस तरीके से मैं आपको कैसे सारा क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा. ठीक है ना. उसके लिए मेरे को हैंड को तो पहले डाउन करना पड़ेगा ना. तो यहाँ पे सेम कंडीशन है. बोलता है एनीथिंग यू लाइक आई नो ऑल द आंसर. जो कुछ भी तुम पूछ रहे हो ना मेरे को मालूम है, आंसर मालूम है. लेकिन उससे पहले ठीक है ना मुझे अपने पोजीशन को जो मैंने हैंड रेज किया है उसको चेंज करना पड़ेगा. मैं कंफर्टेबल होऊंगा. आफ्टर दैट आई एम एबल टू टेल. ठीक है ना. अरे बात समझ में ना. बट आई एम नॉट. ठीक है. अब इंट्रूडर बोलता है सिट डाउन देयर. इंट्रूडर बोला क्या? चलो यहाँ पे बैठो. एंड नो फनी बिजनेस. ठीक है ना. मोशन टू अ चेयर एंड सिट हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग. अब देखो क्या होता है. तो वो बैठ से क्या करता है, चेयर खींच के उसको देता है कि वहां पे तुम बैठ जाओ, और अपने खुद वो बेड पे जाकर बैठता है. नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ. अब इंट्रूडर बोलता है कि अब चलो हमारे बीच में ना जो बातें होगी वो तुम्हारे बारे में होगी. ठीक है. आगे बात समझ में. जेरार्ड एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ. वेट गाइस. Gerard, at last, a sympathetic audience, I will tell you the story of my life, how as a child I was stolen by the gypsies, and why at the age of 32 I find myself in my lonely access cottage. How देखो यहाँ पे access cottage जो है ना एड्रेस है. अरे बात समझ में ना. access in England it is address. ठीक है ना. अब देखो बोलता है जेरार्ड बोलता है कि अच्छा चलो अब तो जाके मुझे कोई मिला सिंपैथेटिक मतलब सिंपैथी दिखाने वाला ऑडियंस जिससे मैं अपने स्टोरी को बताऊं कि आखिर मैं अकेले यहाँ पर कैसे हूँ. ठीक है ना. आ रही बात समझ में. तो बोलते हैं कि आखिरकार मुझे वो ऑडियंस मिल गया, वो सुनने वाला इंसान मिल गया जो मेरी दुख भरी स्टोरी को सुन ले. आ रही बात समझ ना. आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. मैं तुम्हें बताऊंगा अपने जीवन का कहानी. हाउ एज अ चाइल्ड आई वाज स्टोलन बाय द जिप्सीज. देखो मुझे कैसे चुराया गया जिप्सीज के द्वारा. What is the meaning of gypsies? Underline this word, guys. You must have to underline this word. What is the meaning of gypsies? Underline कीजिए. Nomads बोलते हैं इसको. मतलब a person who has not a secure inhabited, जिसका रहने का स्थायी जगह नहीं होता है ना, उसी को हम लोग gypsies बोलते हैं. कभी कहीं पे रह रहे हैं, कभी दूसरे जगह पे रह रहे हैं. That is called gypsies. तो बताते हैं कि कैसे मुझे चोरी कर लिया गया था. ठीक है. मेरी फैमिली मेंबर से. हाँ, we can say that. ठीक है ना. अरे बस समझ में. चोरी कर लिया गया था जिप्सीज के द्वारा, और तभी से मैं आज 32 इयर्स का हो गया हूँ और मैं अकेले इस एक्सेस कॉटेज में रहता हूँ. ठीक है. अब इंट्रूडर बोलता है कीप इट टू योरसेल्फ एंड जस्ट आंसर माय क्वेश्चन. यू लिव हियर अलोन, वेयर डू यू. अब देखो बोलता है कि देखो इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर मुझे सुनने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है ना. आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू हियर सच काइंड्स ऑफ योर आंसर. यही बोलते हैं. कीप इट टू योरसेल्फ. इसको अपने ही पास रखो. ठीक है ना. ये कहानी मुझे सुनने की जरूरत नहीं है. हु सेड दिस वर्ड? इट हैज बीन सेड बाय इंट्रूडर.
ठीक है, कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी कहानी सुनने की, ठीक है, कि ये जो कहानी बना के सुना रहे हो, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट हियर जेरार्ड इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। इतना सिचुएशन होने के बाद भी वो अपने इंटेलिजेंसी का यूज कर रहा है और चाहता है, ठीक है ना, कि पहले सारे सिचुएशन को ये समझे। हमारी बात समझ में, हम लोग देखेंगे अगर हमारे साथ कुछ इंसिडेंट हैपन होता है तो हम काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं ना। बट यहाँ पर ये इंसान, ठीक है, वेरी स्मूथली, ओके, वेरी इजली कंट्रोलिंग दैट पर्सन। वो क्या कर रहे हैं, तो कंट्रोल कर रहे हैं उस इंसान को। ओके एवरीवन, गेटिंग, समझ में आ रहा है ना? अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलना है। यू मस्ट हैव टू स्पीक गाइस। इफ यू स्पीक फ्रॉम योर रेसिडेंस आई कैन हियर योर वर्ड्स बिकॉज वी हैव अ ग्रेट बॉन्ड टू ईच अदर। क्योंकि रिसेंटली हमने पढ़ा है द बॉन्ड ऑफ लव, वी हैव रीड ना, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो देखो अपने घर से जहां पे भी हो, जिस कोने में बैठ के पढ़ रहे हो, वहां से तुम बोलो, तुम्हारी आवाज ना अवंती क्लासेस तक आएगी, इट इज माई गारंटी। आ रही बात समझ में ना? तो बोलना है, बोलना है, हाउ इज द जोश, यू पीपल हैव टू स्पीक, हाउ इज द जोश। अरे बोलो, कुछ नहीं बोल रहे हो। चलिए, ठीक है, तो ये क्या बोले, इंट्रूडर बोलते हैं कीप इट टू योरसेल्फ एंड जस्ट आंसर माय क्वेश्चन। ठीक है, मेरे बस जो मैं क्वेश्चन जो तुमसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे इंट्रूडर बोल रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू शो माई सेल्फ हियर। ओके, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुमको कुछ बताने के लिए। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन को अपने पास रखो। ठीक है, और सॉरी 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 गाइस, इंट्रूडर कीप इट टू योरसेल्फ। इंट्रूडर बोला कि मैं सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है ना, तुम्हारी कहानी को जो तुम बता रहे हो कि कैसे जिप्सी ने तुम्हें चुरा लिया जब तुम बच्चे थे वहां से। जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसी का तुम आंसर दो, ठीक है ना। और पूछता है क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो, ठीक है ना, डू यू रहते हो कि नहीं, बताओ। तो बोल रहा है, जेरार्ड बोलता है आई एम सॉरी आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफैमिलियर। अब जेरार्ड बोलता है कि देखो भाई सॉरी, माफ करना, जिस तरीके से तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये लग रहा है कि तुम मुझे क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हो, मुझे बता रहे हो कि तुम यहाँ पे अकेले रहते हो, ठीक है ना। इन्फ्लेक्शन कहने का मतलब है द वे एज यू आर टेलिंग, ठीक है ना, ये होता है मैंने अ चेंज ऑफ मॉड्यूलेशन, बोलने का तरीका में चेंजिंग लाना, मॉड्यूलेशन, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन। तो जिराड बोला आई एम सॉरी आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग। जिराड बोलते हैं कि माफ करना भाई, बट जैसे कि तुम पूछ रहे हो, ठीक है ना, ये नहीं लग रहा है मुझे कि तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम मुझे बता रहे हो कि तुम यहाँ पे अकेले रहते हो। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफैमिलियर। तो इन्फ्लेक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरलाइन दिस वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेक्शन। You must have to understand what is the meaning of inflection, the modulation which we use while speaking। जैसे आप देख रहे हो ना, कभी कभी मेरा वॉइस क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है। उसके साथ ना पूछने का तरीका, जब गुस्सा होते हैं लोग तो देखते हो ना, टोन बदल जाता है हम लोग को बात करने का। अरे बात समझ में ना? तो यही इसके वॉइस में वो देख रहा है। कौन? जिराड देख रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं लग रहा है ना कि तुम मेरे से पूछ रहे हो क्वेश्चन, तुम मुझे बता रहे हो, ठीक है ना, कि मैं यहाँ पे अकेले रहता हूँ। इंट्रूडर विथ एम्फेसाइजेस डू यू लिव हियर अलोन। अब इंट्रूडर क्या करते हैं, अपने आवाज पे, अपने शब्द पे जोर डालते और बोलता है क्या तुम यहाँ पे अकेले रह रहे हो कि नहीं, बताओ जिराड। एंड इफ आई डोंट आंसर, तो जिराड बोलते हैं अगर मैं आंसर ना दूं तो अब क्या होगा, अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊं तब क्या होगा। इंट्रूडर बोलता है यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट। ठीक है ना, इंट्रूडर बोलता है कि तुम्हारे पास सेंस है, भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है, ठीक है ना, तुम जानते हो कि अगर हम नहीं बताएंगे तो गेट हर्ट यानी तुमको इंजुरी कुछ पहुंच सकता है, नुकसान हो सकता है। देख रहे हो ना रिवॉल्वर, इसी से गोली मारेंगे, ठीक है। अरे हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? इंट्रूडर बोल रहा है, ठीक है, भावनाओं को समझो। ओके ओके एवरीवन, ये नोटेशन कौन ऑन कर दे रहे हो? ट्राई टू क्लोज दिस ऑल थिंग्स, ओके, दिस इज नॉट राइट। Okay guys, don't try to use such kinds of things while having a study. Don't disturb me, okay? Okay everyone, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? Once again I am asking, guys, if you have any problem then you can ask किसी वर्ड में, क्योंकि सारा वर्ड हम बताते हुए चल रहे हैं आपको।
अभी हमने इन्फ्लेक्शन एक वर्ड देखा, ठीक है ना, टेल मी द राइट मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इन्फ्लेक्शन। A change of modulation, a change of modulation. Very good everyone. Very good. Okay. Okay everyone. हाँ, सो एक्सेस जो वर्ड यूज किया गया है वो प्लेस के लिए यूज किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनफैमिलियर? स्ट्रेंज। ओके आस्था, इट इज स्ट्रेंज। आस्था ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके वेरी गुड। अब देखो, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो, ठीक है, तो यहां तक हमने देखा कि जेरार्ड बोलते हैं कि अगर मैं आंसर ना बताऊं तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। जिराड, आई थिंक गुड सेंस इज सोन मोर इन एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मर्स डिजायर टू डू सो। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर इर? अब यहाँ पे देखो जिराड बोलते हैं ना कि आई थिंक गुड सेंस इज सोन। गुड सेंस यानी कि गुड सेंस, अच्छा सोचने का तरीका, अच्छा समझने का तरीका ये होता है ना कि अपने पेन को वो अवॉइड कर दे, उसके बारे में सोचे ही ना। आपका क्या कहना है? ठीक है, अब देखो ये अपने ना शब्दों में उसको फंसाना चाहते थे, ठीक है ना। अभी बात समझ में, अब आगे देखो क्या होता है। और वो पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक मिस्टर इर, तो वो बोलते हैं, इंट्रूडर बोलता है, क्योंकि मिस्टर इर बोल रहे थे, इनडायरेक्टली वो नाम पूछना चाहते थे उससे कि तुम्हारा नाम क्या है। अब इंट्रूडर बोल रहा है नेवर माइंड माई नेम, ठीक है ना, मेरे नेम के बारे में तुम ध्यान मत रखो कि मेरा नेम क्या है। आई लाइक योर्स बेटर, और मेरा जो मेरे को है ना, इंट्रूडर बोलता है कि मेरा मुझे जो है तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा पसंद है। इन द कंपेरिजन ऑफ माई ओरिजिनल नेम, मेरे को तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा पसंद है। कौन बोला? इंट्रूडर बोलता है, किससे? जेरार्ड से, ठीक है ना, मिस्टर जेरार्ड। ओके, व्हाट व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स? अब देखो, जैसे क्रिश्चियन नेम्स करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो जब हम लोगों का जन्म होता है उस समय हम लोग का कुछ ओरिजिनल नेम रखता है, होता है ना। तो वैसे ही इन लोगों का भी प्रथा होता है, उसमें पूछा जाता है कि आपका क्रिश्चियन नेम क्या है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे जेरार्ड बोलते हैं विंसेंट चार्ल्स। आ रही समझ में ना? तो इनका ओरिजिनल नेम अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस नेम, देन व्हाट इज द नेम? विंसेंट चार्ल्स। ओके, अब इंट्रूडर पूछता है उनसे डू यू रन अ कार? अब इंट्रूडर पूछता है क्या तुम कार चलाना जानते हो, ठीक है ना। अब जेरार्ड बोलते हैं नो। अब इंट्रूडर बोलता है दैट इज अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है ना। यू आर नॉट डीलिंग विथ अ फूल, ठीक है ना, तुम एक बेवकूफ इंसान से बात नहीं कर रहे हो। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, मैं उतना ही चालाक हूं जितना कि तुम, और ये भी बोल सकते हो ना तुमसे ज्यादा चालाक। आ रही बात समझ में ना? कौन बोला? इंट्रूडर बोलता है। एंड आई नो यू रन अ कार, बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, ठीक है ना। अब देखो क्या बोलता है कि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि और दूसरी बात ये, तुम मुझे बेवकूफ मत समझो कि तुम बेवकूफ से बात कर रहे हो, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? आई एम नॉट फुल, मैं यहाँ पे फुल नहीं हूँ। आ रही बात समझ में? ये बताते हैं कि मैं उतना ही चालाक हूँ। आ रही बात समझ में ना? मैं उतना ही चालाक हूँ जितना कि, 1 मिनट गाइस। ओके, जितना कि तुम, ठीक है, और कहीं उससे भी ज्यादा, तुमसे ज्यादा हो, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखो, जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको सही सही बताओ, ठीक है ना। जेरार्ड, अब जेरार्ड पूछता है, ठीक है ना, आर यू अमेरिकन और इज दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन? ओके, टेल मी द मीनिंग ऑफ इमिटेशन गाइस, यू हैव टू टेल मी द मीनिंग ऑफ इमिटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिटेशन? यू हैव टू टेल मी द मीनिंग ऑफ इमिटेशन।
नकल करना। वेरी गुड विश, वेरी गुड अदित राज, कॉपी, ठीक है, वेरी गुड, नकल करना। तो अब जिराड पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम अमेरिकन हो या अमेरिकन एक्सेंट की क्या कर रहे हो, नकल कर रहे हो, ठीक है ना, ध्यान से मुझे बताओ। अब इंट्रूडर बोलता है लिसन दिस गन्स नोट वाई आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माय आंसर। अब देखो इंट्रूडर बोलता है ना कि देखो ये मत समझो मेरे पास जो गन है ना ये खिलौना है नहीं, ठीक है, इससे मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ, चोट पहुंचा सकता हूँ और बिना मारे तुमसे सारा आंसर मैं ले सकता हूँ। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को यहाँ तक स्टोरी काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके टेल मी, क्या यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? एक बार बोल दो, बिकॉज आई विल स्टार्ट आस्किंग टू ऑल ऑफ यू फॉर 5 मिनट्स। ओके एक बार बोलो, एक बार आप लोग बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? Is there anyone who has any problem regarding that? No problem, sir. No problem. No problem. Very good. Very good. Very good. Now, it is a high time, guys, to ask some question to all of you. Gypsy, meaning of gypsy, nomads, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, a person who has not particular specific inhabitant, जिनका कोई, ठीक है ना, अस्थाई जगह नहीं होता है रहने का, उसी को बोलते हैं जिप्सीज। तस्लीम, yes, moving one place to another place, I have said already। चलिए अब कुछ बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब जब जिसको मैं बोलूंगा वो अपने माइक को अनम्यूट करेंगे। ओके एवरीवन, श्रीजा, चलिए भार्गवी, भार्गवी, यस सर। चलिए बताइए इस स्टोरी के बारे में कुछ। Do you have any problem? You understand or not this story? First of all, tell me. यस सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। Did you understand this story or not? यस सर, आई अंडरस्टैंड। Okay, just tell me about that. यस सर, इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक जेराड और एक इंट्रूडर। जेराड अकेले एक कॉटेज में रहते हैं। Okay. Okay, Pragya. Yes, Pragya, continue. I think she has some problem. Okay, moving ahead, guys. Anushka. Okay, Astha, you have to speak. Guys, as I am calling your name, you must have to show yourself. ठीक है ना? यस सर। Speak, Aditi. सर, इस स्टोरी में दो कैरेक्टर रहते हैं, एक जेराड और एक इंट्रूडर। Intruder. इस स्टोरी में इंट्रूडर। Intruder. और इस स्टोरी में यस सर, इंट्रूडर। इस स्टोरी में वो जेराड बोलते हैं सरप्राइज, वो सरप्राइज हो जाते हैं उसको एक को देख के। वो इंट्रूडर रहते हैं और वो इंट्रूडर वो लॉन्ग कोट पहने हुए रहते हैं और वो एक वो जेराड बोलते हैं कि आप मेलोड्रामेटिक और लग रहे हैं, आप ओरिजिनल नहीं लग रहे। और वो सर रिवॉल्वर हैंड में लिए हुए रहते हैं इंट्रूडर, और वो बोलते हैं हैंड रेस करने के लिए।
Okay. और फिर सर और वो बोलते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, तो जिराट बोलते हैं ठीक है, मुझे खुशी हुआ कि कोई मेरे से पहली बार मेरे बारे में पूछ रहा है, तो वो बताते हैं। तो वो बोलते हैं उसके बाद सर Okay, very good. सर उसके Aditi, as you are trying, you must have to express yourself more. Okay, I hope that in our next class you will speak more. Okay. Okay, यस सर, Aditi. Aditi, are you listening me? I hope that in our यस next सर, class you will speak more. Okay, as you are telling about this story, this is quite enough for right now. But in our next class, you have to prepare. As I asked from you, you have to speak about this. Okay. यस Say yes or no. Am I यस audible, सर, Aditi? यस सर। Okay. So moving ahead, guys, to next boy, and who is that? Srija. Srija. Okay, guys, this is quite enough for today. Okay, everyone, we will complete this chapter in our next class. Till you have to remember this chapter as well as read once again this chapter. Okay, you have to remember the words which has given here. Okay, जिसका मीनिंग मैंने बताया आप लोगों को। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास को। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।